کی تفصیل شامل کریں۔ اپوزیشن نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس نہ ہونے دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسپیکر نے پیر کو تحریک عدم اعتماد پیش نہ کی تو ایوان میں دھرنا ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں OIC اجلاس کیسے ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اعلان کر دیا۔ شہباز شریف نے بھی بلاول کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہمت ہے تو OIC اجلاس روک کر دکھائیں۔ متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک میں اپوزیشن نے OIC اجلاس روکنے کی دھمکی دے کر سب کو حیران کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی اس دھمکی امیز فیصلے کی حمایت کر دی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا اسپیکر نے غیر جمہوری انداز اپنایا تو ایوان میں دھرنے کے لیے اپوزیشن اور اپنی پارٹی کو مناؤں گا۔ شہباز شریف نے نہ صرف دھرنے کی حمایت کی بلکہ دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ وزیر داخلہ بھی پیچھے نہ رہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں اپوزیشن کا چیلنج قبول کرتے ہوئے بولے ہمت ہے تو OIC اجلاس روک کر دکھائیں۔ بطور وزیر داخلہ کہتا ہوں ان کے ساتھ وہ ہوگی کہ اپنی نسلوں کو نصیحت کر کے جائیں گے۔ یہ عظیم پاکستان کے مہمان ہیں اور عظیم پاکستان فوج ان کی گرنٹر ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، بھول جائیں گے عدم اعتماد اور فلاں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے کہ امید کرتے ہیں بلاول بھارتی اہلکار بن کر OIC اجلاس سبوتاش نہیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس تعداد پوری ہے تو بکھلائے ہوئے کیوں ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ بلاول ملک کے مفاد پر اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹر بیان میں فاروق حبیب نے کہا کہ بلاول بھٹو ملک کے مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیحات دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ ایسا بیان دے کر کون سی بیرونی قوت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ 57 ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے بلاول بھٹو کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ جلسے جلوس اور تحریک عدم اعتماد کے معاملات کو 24 مارچ تک مؤخر کیا جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا جو اجلاس ہے وزرائے خارجہ کا اور جو پریڈ ہے 23 مارچ کی 75واں یوم پاکستان ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ اعزاز پاکستان کا ہے، یہ فخر پاکستان کا ہے۔ کیا کل اگر یہاں پر کسی اور کی حکومت ہوگی اور اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوگا اور کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو قوم اسے قبول کرے گی؟ اس لیے وہ OIC جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنائی تھی اور اس کی انہوں نے قیمت ادا کی تھی، اس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، تو بلاول کو ایسے وقت میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جلد سے جلوس مظاہرے 24 تک مؤخر کریں اور 24 کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ نے تحریک عدم اعتماد کی اندرونی کہانی بتا دی۔ عمران اسماعیل نے کہا وزیر اعظم OIC کے اجلاس کے بعد ترک کا پتہ پھینکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی مائی کا لال OIC اجلاس میں رکھنا نہیں ڈال سکتا، ریاست کے پاس ڈنڈا ہے، پوری قوت سے جواب دیں گے۔ ہم نے کسی ایک MNA کو اسٹیٹ ہونے کے باوجود، اسٹیٹ کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اسکیمیں ہوتی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا، وہاں جائز تھا، یہاں ناجائز ہے۔ کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا گورنر راج لگانے کے لیے، ایک سے دوسرا سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے پورے نمبرز کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پاس کرے گی۔ نمبرز تو ایکچولی اپوزیشن نے پورے کرنے 172، وہ اس کو پورے نہیں کر سکیں گے۔ رمیش کمار بیٹھا کہہ رہا ہے وزیر اعظم سے بات کریں، مجھے وزارت دے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بس اتنا ہی تھا۔ 7 دن میں معافی مانگیں ورنہ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ PTI نے پارٹی سے منہ پھیرنے والے اراکین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سیکرٹری جنرل اسد عمر نے 14 ارکان قومی اسمبلی کے شوکاز نوٹسز پر دستخط کر دیے ہیں۔ پارٹی کے نام پر ووٹ لے کر غیروں سے ہاتھ کیوں ملایا؟ کپتان نے باغی کھلاڑیوں سے جواب طلبی کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے باغی اراکین قومی اسمبلی کو شوکاز نوٹسز ارسال ہو گئے۔ کیوں بغاوت کی؟ سندھ ہاؤس میں پناہ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جواب دیں۔ شوکاز نوٹس میں منحرف اراکین کو 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط طور پر پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی گئی ہے۔ جواب نہ دینے کی صورت میں قانونی کارروائی کی تنبیہ بھی کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین میں راجہ ریاض، نور عالم خان، نصرت پٹھان، وجیہ اکرم، رامیش کمار، اسد سلطان، نواب شیر وسیر، ریاض مزاری اور رانا قاسم نون سمیت دیگر شامل ہیں۔
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को एक ऐसा बोझ करार दिया है जिसको कोई नहीं उठा सकता। ट्विटर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर वजीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, दूसरों को शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले उस शोकॉज नोटिस का जवाब दो जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किस कारकुन को इस काबिल छोड़ा है कि अवाम का सामना करे। पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल दिया है। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों के सामने दो रास्ते हैं, पहला रास्ता अवाम के साथ और दूसरा डूबती कश्ती में गर्क हो जाना है। वज़ीर आज़म की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी पेशगोई, बोले जैसे जैसे वोट का दिन करीब आएगा तो ये सारे लोग वापस आ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, जब छांगा मांगा की सियासत थी तब सोशल मीडिया नहीं था। अवाम 27 तारीख को बताएं कि किसके साथ खड़े हैं। ये मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना। इलेक्शन ये जब जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। वो जब छांगा मांगा की पॉलिटिक्स थी तब सोशल मीडिया नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया एक एक चीज़ लोगों के सामने ले आता है। ये वक्त बदल गया और इंशाअल्लाह 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे। मेरी ये पेशन गोई है कि ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी पब्लिक जमा नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पर आइन के मुताबिक अमल किया जाए, सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वादे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की आइनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के एहतजाज को जायज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। आपके वोट लेकर अगर कोई किसी दूसरे को वोट दे तो ऐसा ही होता है। अगर ऐसा बरतानिया में होता तो ऐसे अफराद सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो जाते। उनका मजीद ये भी कहना था कि खरीदो फरोख्त की सियासत पर किसी को शर्म नहीं आ रही। इसको जमहूरियत नहीं कहते, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। कोई किसी को शर्म नहीं है कि इस तरह इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं। जमहूरियत किसी और चीज़ का नाम होता है। मैंने बरतानिया में कोई 30 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक अवाम के खौफ की वजह से किसी की मजाल नहीं है कि जाके इस तरह की हरकतें करे जो सिंध हाउस में हो रही हैं। मैंने तो अपने लोगों का, हमारे लोग ज़रा जज्बात में आ गए। पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है तो आपका फ़र्ज़ है, बल्कि हक नहीं, आपका फ़र्ज़ है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादम ना करें। और दूसरी चीज़, बनीगाला में वज़ीर आज़म की सदारत में तहरीक इंसाफ की एक और बैठक हुई जिसमें तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के साथ साथ रूठे हुओं को वापस लाने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन ने धड़कनें तेज की हुई हैं। जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, तहरीक अदम एतमाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए चैलेंज बनी हुई है। बनीगाला में तदाबीर करने के लिए वजीर आजम ने एक बार फिर अपनी टीम के साथ सर जोड़े। सियासी मुखालिफिन की चालों का क्या तोड़ किया जाए, वफादारियां बदलने वालों को कैसे वापस लाएं, मजीद उड़ान भरने के लिए तैयार बैठे परिंदों को कैसे काबू में रखें, तमाम तर हिकमत अमली जेर बहस आई। हुकूमती इजलास में मुनहरिफिन का रास्ता रोकने के लिए कानूनी मामलात पर भी मुशावरत हुई। वजीर इत्तलात ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हुकूमत मुतमईन है, सूरत हाल हमारे हाथ में है। मुश्किल 172 वोट पूरे करने वालों के लिए है। हमारे रूठे लोग भी वापस आ रहे हैं। इजलास में परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दो टोक अल्फाज में कप्तान का मौक़िफ़ बताया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले लोटे बन गए, तौबा का दरवाजा खुला है। अरकान वापस आ जाएं। उन्होंने सियासी तलखी बढ़ने का एतराफ़ करते हुए कहा, इन तलखियों को कम करना है। आप इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लें, पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीते और उसके बाद आप लोटे बन जाएं और आप पैसे लेके अपने आप को जो है वो बेचना शुरू कर दें। ये मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता, ये इसकी सियासत हमारी इसकी इजाज़त नहीं देती। और देखिए दूसरी बात यह है, इमरान खान ने कोई ब्लैकमेल नहीं होना इस सिचुएशन में किसी से। अगर किसी की ये ख्वाहिश है अपोजिशन की कि कोई इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएंगे, वो उन्होंने नहीं होना। हम समझते हैं जो भी मसाइल हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए। मैंने ये कहा था इतनी तलखियाँ पैदा ना करें कि बैठना ही मुश्किल हो जाए।
तलखियाँ बढ़ रही हैं और इन तलखियों को कम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अदालत का जो भी हुक्म हो उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म से बाद नागुज़ीर कानूनी उमूर पर मुशावरत भी की। मुल्क की सियासत में डी चौक एक बार फिर से सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तहरीक-ए-इंसाफ 10 लाख लोग लाने की दावेदार तो अपोजिशन जमातें 20 लाख का मजमा इकट्ठा करने को तैयार। पुरअमन डी चौक इस्लामाबाद की मुल्की सियासत में अहमियत पर कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क की सियासत में एक बार फिर से डी चौक के चर्चे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आने से कबल डी चौक में 126 दिन का धरना हो या फिर हुकूमत बनने के 3.5 साल बाद एक बार फिर डी चौक पर पावर शो का ऐलान। अगर ये कहा जाए कि पीटीआई सरकार और डी चौक का चोली दामन का साथ है तो शायद गलत ना हो। दूसरी जानब अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से भी डी चौक इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की सूरत में अरकान को पहुंचने का हुक्मनामा जारी हो चुका। 27 मार्च को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 लाख लोग इकट्ठे करने का ऐलान कर चुकी तो अपोजिशन जमातों ने भी 20 लाख लोगों की आमद की नवीद सुना दी है। चूँकि हालात आने वाले दिनों में एक बार फिर डी चौक के गिर्द घूमेंगे। डी चौक इस्लामाबाद जहाँ अब मुल्की सियासत में अहमियत का हामिल हो चुका, वहीं ये बात भी काबिल अमन है कि आया 10 लाख या 20 लाख लोग दारुल हुकूमत के रेड जोन में वाक़ डी चौक में समा पाएंगे या महज आदाद शुमार का हेर फेर मुल्क के तूलो अर्ज में टेलीविजन स्क्रीन का मंजर पेश करेगा। डी चौक से शुरू होने वाला सियासी खेल क्या डी चौक पर इख्तिताम पजीर होगा या डी चौक में एक मरतबा फिर से जो है वो 126 दिनों की याद दोबारा ताज़ा करवाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन सत्ती के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज़, डी चौक, इस्लामाबाद। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजारत दाखिला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से सिंध हाउस पर धावे के मामले पर आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की सरबराही DGI ऑपरेशंस अवैस अहमद कर रहे हैं, जबकि वजारत दाखिला ने 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर मंदोखेल ने सिंध हाउस हमले में वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर खारजा के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमला वजीर दाखिला के कहने पर हुआ और हमारे बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया गया। जामियातुल कौसर इस्लामाबाद में फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक कानून साजी की ज़रूरत, अहमियत और पेशरफ्त के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रीन ने इत्तेहाद उम्मत के लिए अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की खिदमात को सराहते हुए कहा, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। अल बसीरा ट्रस्ट, मुंतहाए नूर, मरकज तहकीकात और बज़्म शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के ज़ेर तमाम मुनक़दा सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी, अल्लामा आरिफ हुसैन वैदी व दीगर मुकर्रीन का कहना था कि अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की काविशें काबिल तहसीन है। जद्दोजहद करके फ़िक़्ह जाफरिया को अहकाम का हक दिलवाया। फ़िक़्ही तारीख़ में ये जो हक़ जो है वो इससे हम महरूम थे। आज ये अतबा अहले बैत के पैरोकारों के लिए ये हक़ दिला दिया। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने किस खुलूस के साथ और मेहनत के साथ जद्दोजहद की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक इतना अजीम काम हुआ है जिसके शुक्राने के तौर पे हमने लाहौर में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। स्ट्रगल अल्लामा साहब बहुत अरसे से कर रहे थे, ये आइन के मुताबिक था और आइन में ये बुनियादी हक है जो हुआ है। थोड़े बहुत इख्तलाफी मसाइल हैं, उसमें भी हम इस मसले पे मुत्तहिद हैं कि आप अपनी फिक्र पे अमल करें, हम अपनी फिक्र पे अमल करें। साबिक मेंबर इस्लामी नजराती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि हमने जद्दोजहद की, कानून साजी हुई, अहले सुन्नत उलमाए कराम ने भी साथ दिया। 14 उलमाए अहले सुन्नत ने उनका इजलास बुलाया वहाँ लाहौर में। किसी मरहले पर रुक जाता तो ये आगे नहीं चलना था। ये आखिरी मरहला बहुत ख़तरनाक और सख्त था और सारी मेहनत रायगां जानी थी और फिर पता नहीं ये आईनी हक कभी मिलना था या नहीं मिलना था।
आप अपना हक लेना चाहते हैं तो आपको मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ेगी। शुरका ने ऐन पाकिस्तान की रोशनी में मुस्लिम आइली कवानीन के सेक्शन 4 बाबत मीरास और सेक्शन 7 बाबत तलाक बारे फिक्का जाफरिया के मुताबिक कानून साजी के लिए जद्दोजहद पर साबिक मेंबर इस्लामी नजराती काउंसिल अलामा सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी की काविशों को सराहा। कैमरामैन शियान और हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से और आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की मेजबानी लाहौर के हवाले कर दी गई। पहला मैच 29 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया ने मुत्तफिका तौर पर मेजबानी लाहौर के सुपुर्द की है। पीसीबी का कहना है कि दोनों बोर्ड ने मुशावरत के बाद 19 मार्च की सुबह ये फैसला किया, जिसके बाद 29, 31 मार्च और 2 अप्रैल को 3 वनडे मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।